Hi guys, welcome to my YouTube channel, and today we are going to start with a new lesson of class 8, that is chapter 7, reaching the age of adolescence. So in this chapter what we are going to understand is that what is adolescence and what is puberty, and why is it important, what are the changes, क्या चेंजेस ऐसे आते हैं बॉडी में in males and females, in boys and girls, which ultimately lead to the reproductive maturity. So let's get started. So we know that uh, let's start from here. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all girls' school. She started laughing. She remarked that many of the Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. So, one very remarkable change that we see during the adolescence or puberty is the change in height. Most of you have, compare yourself when you were in class 5 and now when you are in class 8. So there is so much of height difference between that particular age the present day uh, to the present day height of yours. Okay, so now some of us look very funny also, like as they say that some of them were looking very funny with a hairline above their lips. So children, have you noticed that when you come in class 8th or ninth, you must have seen that above your lips there is a small hairy line, and you start exploring, start experiencing few changes in your body, that yes, there are certain changes, and now you feel that yeah, you are growing up to become an adult finally. So okay, now what is this is all a part of growth. Okay, and our body grows from the day one when we are grown, when we are born, and upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. So क्या होता है कि आपको पता है that from the birth itself, slowly from an infant you become a toddler, and from a toddler you become a kid, and then again from the kid eventually you grow in height. There are so many changes. Your voice changes from that sweet little baby's voice. Your voice grows into the boys develop a hoarse and deep voice, whereas the girls, they develop a very shrill and light voice. Okay, so all these changes one by one you can start noticing from the age of 10 or 11. ये जो हमारे changes होते हैं body में, they become very prominent and they become very noticeable. इससे पहले आप इतना growth जो है वो notice नहीं कर पाते हो, right? So let's see. Okay, I wonder how long this period marked by changes in the body will last. Now, Buju is thinking about it, and then Paheli is saying that it is a strange period of life when you are neither a child nor an adult. I wonder whether this period between childhood and adulthood has a special name. So, children, yes, this period between the childhood and adulthood is actually called as adolescence. इसी period को हम क्या बोलते हैं? We call it as adolescence. So now growing up is a natural process. All of us grow. ठीक है? And then during this adolescence, there are so many changes that occur in our body, and that these changes ultimately lead to our reproductive maturity. So basically, it is for the reproductive maturity, आपके reproduction के लिए, and all of us know that why reproduction is important. Yes, reproduction is important to ensure the survival. It is important to ensure the continuity of life on earth, as well as that our species, it continues to stay on the planet, yeah, to ensure the continuity of life and the survival of the same species, the survival of species of our own kind. So these are the two basic reasons that any individual in a population reproduces. ठीक है? अब इन्हीं चेंजेस को, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिससे हमारी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पता लगती है, अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, इन सभी चेंजेस को हम बोलते हैं एडोलेसेंस. और ये डिफरेंट डिफरेंट एजेस में शुरू होता है. मोस्टली इन बॉयज़ इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11,
और ये लास्ट करता है 18 to 19 ईयर्स तक. दैट इज़ वाई हम इस पीरियड को कभी कभी टीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि 13 से 18 ईयर्स तक के लास्ट में टीन ऐड होता है. तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज टीन्स एज. एंड ऑल द एडोलसेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं दैट दे आर टीनेजर्स. व्हाट वुड वी कॉल देम? दैट दे आर टीनेजर्स, राइट. सो गर्ल्स में क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ एडोलसेंस होता है ये 1 or 2 ईयर प्रायर शुरू हो जाता है, जल्दी शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़. सो अगर बॉयज़ में एडोलसेंस 11 ईयर्स की एज में आ रहा है तो गर्ल्स में कब स्टार्ट हो जाएगा? 9 ईयर्स की एज में, ठीक है. एंड कॉन्टिन्यूड तो ये रहता है 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज में ही. So now the human body undergoes several changes during adolescence and these changes mark the onset of puberty. तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जो changes आए हैं, जो changes हमारे adolescence में आए हैं, इसी से हमें पता चलता है that this is the onset of puberty. And puberty is what? It is actually becoming capable of reproduction. That boys and girls, they become capable of reproduction. ओके, सो प्यूबर्टी क्या है कि इट इज़ द चेंजेस, जो भी एडोलसेंस में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, दे आर बी मार्क्ड बाय दैट दे एक्चुअली मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. हमें इससे पता चल जाता है कि प्यूबर्टी का ऑनसेट आ गया है. एंड नाउ व्हाट हैपन्स इन प्यूबर्टी इज एक्चुअली दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के केपेबल हैं. अच्छा, प्यूबर्टी एंड कब हो रही है? प्यूबर्टी एंड हो रही है जो हमारा एक एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अचीव कर लेता है. यानी कि नाउ द बॉय और द गर्ल इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए वो एक इंडिविजुअल रेडी है. तब हमारी प्यूबर्टी का जो एंड है वो अचीव हो जाता है. करेक्ट? ऑलराइट, सो पहेली एंड बूझो दे रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence. तो क्या दो बहुत important ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि एक तो हाइट इंक्रीज है बहुत ज़्यादा, सडन इंक्रीज है हाइट में. दूसरा, देयर इज़ अ हेयरी लाइन अबव द लिप्स. तो ये क्या है? ये साइंस ऑफ एडोलसेंस है. सो लेट अस, दे जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट आर द अदर चेंजेस दैट आर देयर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी. सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस एट प्यूबर्टी. तो सबसे पहला इंक्रीज तो जो हमने पढ़ा वो इंक्रीज इन हाइट ही हो गया कि एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? हमारी आर्म्स और लेग्स की जो हमारी बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन्स होती हैं और ये इलोंगेट करती हैं. और इनके इलोंगेशन यानी कि लंबे हो जाने से जो पर्सन है वो क्या हो जाता है? टॉल हो जाता है. अब आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द फॉलोइंग चार्ट. नाउ देयर इज एन एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. कैन यू सी दिस? ठीक है. और इसी के नीचे यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मूला गिवन ऑल्सो so that we can calculate the full height. So it shows that, for example, by the age of 11, a boy has reached 80% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. ठीक है. Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be. तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं. ये फॉर्मूला दिया है, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर्स अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज. सो अगर मान लीजिए एक 9 ईयर के बॉय की प्रेजेंट हाइट क्या है? 120 है. तो फुल हाइट उसकी कितनी हो सकती है? फुल हाइट बॉयज़ का यहाँ पे दिया हुआ है 75%. सो लेट्स सी, 120 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, दैट इज 160 सेंटीमीटर टॉल. तो यानी कि इट इज़ लाइकली दैट द बॉय विल बी 160 सेंटीमीटर टॉल. ठीक है. यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी. यू कैन ऑल्सो सी अ ग्राफ गिवन हेयर दैट शोज द परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज. अब नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो जो गर्ल्स की एज है, गर्ल्स शोन बाय द ट्रायंगुलर, गर्ल्स की एज बहुत जल्दी, गर्ल्स की जो हाइट है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगती है. इट शोज एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पे हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इवेंचुअली इस पॉइंट पर आके समवेयर अराउंड 97 यहाँ पे आके इसमें एक स्टेबिलिटी आ गई है. यही अगर आप बॉयज़ की हाइट को देखो तो ये थोड़ा स्लोअर रेट से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन
इनकी ज़्यादा लंबे टाइम तक, ज़्यादा एज तक जो हाइट है वो बढ़ती रहती है. अगर आप देखोगे गर्ल्स की 15 ईयर्स में आके अराउंड स्टेबिलिटी आने लग गई है, बट बॉयज़ के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एट द एज ऑफ 16, इवन 17 एंड 18 जो हाइट है वो अभी भी 18 ईयर्स तक बढ़ रही है. सो गर्ल्स का जल्दी इंक्रीज होती है हाइट, बट बाद में स्टेबिलिटी आ जाती है, ग्राफ स्टेबलाइज हो जाता है. और बॉयज़ में स्लो हाइट बढ़ती है, स्लो हाइट गेन रहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उनकी जो हाइट है वो बढ़ती है. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, दैट गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़, बट by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly and then slow down, while others may grow gradually. So there's nothing fixed actually, depends upon the individual. Depends on person to person depend करता है. अब जितने भी हमारा बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे सेम रेट से भी ग्रो नहीं करते. कभी कभी हमें लगता है कि एडोलेसेंस के हैंड्स और फीट थोड़े ओवरसाइज्ड हैं या आउट ऑफ प्रोपोर्शन बॉडी रहती है, ठीक है, बट अदर पार्ट्स दे ऑल्सो कैच अप सून एंड अल्टीमेटली जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तो बॉडी जो है वो एक अच्छे प्रपोर्शन में आ जाती है, मतलब प्रोपोर्शनेट बॉडी लगती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे बॉडी पार्ट्स नहीं लगते हैं. बट ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड देयर कैन बी अ लिटिल चेंज विच यू कैन ऑब्जर्व. ऑल्सो जो फैमिली मेंबर हैं इनकी हाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है इंडिविजुअल की हाइट में, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द जीन्स दैट आर बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स से जो जीन आते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी हाइट. तो लाइकली क्या है कि अगर पेरेंट्स दोनों की हाइट, अगर मदर फादर दोनों की हाइट ज़्यादा है तो द प्रोबेबिलिटी इज़ कि चाइल्ड जो होगा उसकी भी हाइट ज़्यादा ही होगी, ठीक है. नाउ it is very important to eat the right kind of food during these growing years, ठीक है. क्यों? Because eating the right food, getting the right nutrition, it helps to the bones, to grow the bones, muscles and other parts of the body so that it gets adequate nourishment मिलेगा तभी जो body है वो grow करेगी. That is why mamas are always after you that drink milk, do a regular exercise, sleep on time, eat nutritious food, don't eat junk food. ये जितना भी लेक्चर मम्मा लोगों से मिलता है ये बच्चा इसीलिए मिलता है. ओके, नाउ चेंज इन बॉडी शेप. लेट्स टॉक अबाउट द चेंज इन बॉडी शेप. क्या होता है, हमारी बॉडी की मसल्स ग्रो करने लगती हैं, ठीक है. हमारे शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं. गर्ल्स में अगर आप देखो तो वेस्ट के नीचे का, बिलो द रीजन बिलो द वेस्ट के कमर के नीचे का जो एरिया होता है वो थोड़ा वाइडन अप होना शुरू हो जाता है. सो दीज आर द प्रोमिनेंट चेंजेस जो गर्ल्स की बॉडी में डिफरेंट बॉडी शेप में डिफरेंस आते हैं. तो यहाँ पे बॉयज़ की बॉडी शेप डिफरेंट होती है और गर्ल्स की बॉडी शेप भी डिफरेंट होती है. दोनों में चेंजेस डिफरेंट वे से आते हैं. यहाँ पे हमने गर्ल्स के बॉडी चेंजेस को ज़्यादा हमने हाईलाइट किया है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वॉइस चेंज. जो वॉइस चेंज कैसे, जो हमारा वॉइस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर वॉइस बॉक्स. और वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लैरिंग्स. सो वॉइस की डेवलप कैसे होती है, बॉयज़ हैव लार्जर वॉइस बॉक्सेस. सो लार्जर होने की वजह से उनका जो थ्रोट में वॉइस बॉक्स होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है, यानी कि वो आगे की तरफ काफ़ी विजिबल होता है, दिखाई देता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज एन एडम्स एप्पल. लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. वी कैन कॉल इट एज एडम्स एप्पल, ओके. एंड यू कैन सी द प्रोट्रूडिंग, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट. बॉयज़ में ये बड़ा होता है इसलिए ये प्रोट्रूड करता है, गर्ल्स में ये विजिबल नहीं होता है. Now गर्ल्स में विजिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई द गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. इनकी जो पिच होती है गर्ल्स की वो हाई होती है, जबकि बॉयज़ की वॉइस जो होती है वो डीपर होती है, राइट. So now in adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. तो आवाज़ होती है बिल्कुल hoarse होती है, कभी कभी समझ भी नहीं आती है, ठीक है. ये कुछ डेज या कुछ वीक्स तक के लिए रहती है. बाय द टाइम जो वॉइस आ रही है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. आफ्टर दैट इट बिकम्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है. तो कभी जो गला बैठा हुआ लगता है वो एक्चुअली बैठा हुआ नहीं होता. इट इज़ बिकॉज दैट द वॉइस इज चेंजिंग. वॉइस बॉक्स जो है वो एनलार्ज हो रहा होता है वॉइस का उस टाइम पे. दैट्स वाई सो मेनी ऑफ चेंज यू कैन ऑब्जर्व. ओके,
Then we have is increased activity of sweat and sebaceous glands. स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हमारे पसीना आता है जिसकी वजह से। सेबेशियस यानी कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं अपनी सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनको क्या होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इनमें, जो हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। So next we have increased activity of the sweat and sebaceous glands. So basically these are oil glands और ये रिलीज करते हैं secretions in the forms of oil. तो इस एज में क्या होता है कि you must have observed कि क्लास 8 से लेके क्लास 10th 11th 12th में भी आप देखते हो कि बच्चों के फेस पे, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, बहुत ज़्यादा पिम्पल्स और एक्नेज डेवलप हो जाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑयल सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दीज इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ क्या हो जाता है कि फेस पर पिंपल्स और एक्नेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। सो what is required during this time is that you should take proper care of your face and neck, or regularly you should wash it so that to control the secretion of oil. आप कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे क्योंकि चेंजिंग फेज है, लॉट ऑफ हॉर्मोन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, सिक्रीशंस हो रही हैं, बट देन बाय वॉशिंग फेस यू कैन मिनिमाइज द एक्नीज एंड द पिंपल्स। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स पूरे डेवलप हो जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स में आपके क्या आते हैं, वन इज़ द टेस्टिस और दूसरा है आपका पेनिस। टेस्टिस जो है वो आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है इन बॉयज़, एंड अगर हम गर्ल्स की या फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरीज जो हैं दे गेट एनलार्ज्ड एंड एग्स बिगिन्स टू मैच्योर। तो यहाँ पे एग जो है वो मैच्योर होता है और ओवरीज दे स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो ओवरीज प्रेजेंट पहले भी थी बट दे वर नॉट वेरी दे वर नॉट डेवलप्ड, बट यहाँ पे क्या है कि डेवलप्ड ओवरीज है एंड दे विल रिलीज मैच्योर एग्स, ठीक है। Then we have reaching mental, intellectual and emotional maturity. So adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. ठीक है, तो adolescence क्या है, यहाँ पे adolescents अब ज़्यादा independent हो जाते हैं पहले से, they become more independent, they become self-conscious, ठीक है, intellectual development होने लग जाती है और thinking में बहुत टाइम इनका निकलता है। So brain has the मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर लर्निंग। इस टाइम पे आपकी लर्निंग की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ पे प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड, प्रॉपर पेरेंटल सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द adolescent टू फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट एंड स्पेंड देयर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, फिर मेल्स में टेस्टिस हो गया और फीमेल में क्या हो गया, ओवरीज हो गई। अब गर्ल्स में पुबर्टी के टाइम पे क्या डेवलपमेंट होती है, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, आपका माउस्टैच और बियर्ड आ जाती है। सो इन फीचर्स के डेवलपमेंट से आप क्या कह सकते हैं कि येस द चाइल्ड हैज़ एंटर्ड द adolescent phase. Now these are the secondary sexual characteristics which helps to understand also that the body is undergoing change, that an individual is undergoing a change and is now preparing itself for the reproduction. Boys they develop hair on the chest, boys के chest पे hair आ जाते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो उनकी आर्म्स में, अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ हो जाती है और प्यूबिक रीजन में भी हेयर ग्रोथ आ जाती है। ओके, सो नाउ बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। ये एक्चुअली चेंजेस आ रहे हैं, हमने चेंजेस पढ़ भी लिए। अब ऐसा रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं? सो चिल्ड्रन, द रीज़न इज़ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स होते हैं स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे कुछ स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड।
और टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स ultimately we develop all these characteristics, all these features, all these characters. So now let us understand that what are the different hormones. अब आप देखो मेल में अलग है और फीमेल में अलग है. If I talk about males, मेल हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ये रिलीज होता है टेस्टिस से. ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये रिलीज होता है हमारा टेस्टिस से. इससे जितने भी चेंजेस आते हैं, उस बॉयज़ में चेंजेस आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. अब प्यूबर्टी में फीमेल में कौन सा हो रहा है? दैट इज़ एस्ट्रोजन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एस्ट्रोजन डेवलप होता है और प्रोड्यूस होता है, और एस्ट्रोजन किस में डेवलपमेंट पे हेल्प करता है? आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे हेल्प करता है. और मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को हम बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं हम? मैमरी ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स ब्रेस्ट के अंदर की तरफ डेवलप होते हैं, ठीक है. And the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland that is called as pituitary gland. ये एक और हार्मोन के कंट्रोल में है, और ये जो हार्मोन है ये दूसरा एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड. ये भी एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है. इस ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, करेक्ट. रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. अब इसमें क्या होता है, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट. अब जिस बॉडी पार्ट में ये हार्मोन जाना चाहता है, पहुंचेगा, उसको हम बोल देते हैं टारगेट साइट, ठीक है. और जो हमारी टारगेट साइट होती है दैट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन. सो देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. इसको डक्टलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि द रीजन इज दैट दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसलिए हम इनको बोल देते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, करेक्ट. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. ये तो हमने पढ़ ही लिया है. अब ये जो sex hormones होते हैं, they are under the control of other hormones from the pituitary gland. ये भी हमने अभी पढ़ा कि भाई पहले क्या है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन है, और ये दोनों किसके कंट्रोल में? एक और हार्मोन के जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है. यही बात यहाँ पे सेम रिपीट है. द पिट्यूटरी सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस. यानी कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट एक हार्मोन उनमें से ऐसा है जो कि ओवा को मैच्योर कर रहा है ओवरीज में, और स्पर्म्स को बना रहा है किस में? टेस्टिस में. तो यही एक फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट के थ्रू हमें समझाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट किया. स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना एक तरीके से, ठीक है. अब टेस्टिस क्या रिलीज करेंगी? टेस्टोस्टेरॉन. किस में? मेल्स में होती हैं तो मेल्स में करेंगी, और ओवरीज किस में होती हैं? फीमेल्स में. तो फीमेल्स में क्या रिलीज करेंगी? एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी. अब ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा. ब्लड स्ट्रीम में जाके ये अपनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद जहाँ वो पहुंचेगा दैट विल स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. तो जहाँ पे हमारी प्यूबर्टी की ऑनसेट के लिए चेंजेस इंड्यूस करेगा, चेंजेस को स्टिमुलेट करेगा, चेंजेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है. इसी को बोलते हैं हम ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. तो इस तरीके से हमारी जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होती है. नाउ पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द प्यूबर्टी मार्क्स द beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. But they want to know if reproductive life once begins continues or it ends in sometimes. ये आपकी थ्रू लाइफ कंटिन्यू होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ, या फिर कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है, हॉल्ट पे आ जाती है. लेट अस सी. सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ की, तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो फीमेल्स में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स जनरली, और लास्ट करता है टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है. 45 to 50 ईयर्स तक ही रिप्रोडक्शन की
कैपेसिटी जो है वो फीमेल्स में, गर्ल्स में रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी पुबर्टी का ऑनसेट हुआ, जो ओवा है वो बिगिन हो गया टू मैच्योर, और एक ओवम जब मैच्योर होता है एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 28 to 38, यानी कि 28 to 30 डेज के बीच में एक ओवम जो है वो, ओवरीज जो है वो रिलीज करती हैं। अब जब ओवम रिलीज होगा तो बॉडी खुद को क्या प्रिपेयर करेगी, बेबी के लिए प्रिपेयर करेगी, रिप्रोडक्शन के लिए। भी नेचुरली रिप्रोडक्शन होगा तो ऑफस्प्रिंग तो आएगा ना, बेबी ही प्रोड्यूस होगा। सो उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर होना शुरू होती है। क्या होता है, लेट्स सी, द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। सबसे पहले एग रिसीव करने के लिए यूट्रस की वॉल जो है दैट बिकम्स थिक। ओके, इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डेवलप, यानी कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग को स्पर्म मिल जाता है और दोनों कंबाइन कर जाते हैं, तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग इट स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, और इसी को क्या हम बोल देते हैं, वी कॉल इट एज प्रेगनेंसी। दिस लीड्स टू द प्रेगनेंसी। अच्छा, द नेक्स्ट केस सिनेरियो इज कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो अभी लाइनिंग आने लग गई थी, बनने लग गई थी, अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी तो चाहिए, सब शेड ऑफ हो जाता है। इस शेडिंग ऑफ की वजह से क्या होता है, वुमेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो हम मेंसेस बोलते हैं, जिनको हम ले मैन लैंग्वेज में भी कॉल इट एज पीरियड्स, है ना, पीरियड्स बोल देते हैं ना ले मैन लैंग्वेज में, बट एक्चुअली द टर्म इज मेंस्ट्रुएशन, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो किसी फीमेल में 28 डेज का साइकिल होता है और कुछ कुछ फीमेल्स में 29 या 30 डेज का साइकिल होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। All right. So now first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. तो इसको हम बोलते हैं menarche, पहले जो menstrual flow होता है उसको। And between the age of 45 to 40 years जो हमारी menstrual cycle होती है females में, ये रुक जाती है, stop हो जाती है। और जब ये menstruation होना stop हो जाता है तो इस condition को हम बोलते हैं menopause. We call it as menopause. ठीक है, इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जब स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, इट इज़ वेरी इरेगुलर। तो कुछ फिक्स नहीं होता कि 28 डेज में वापस से साइकिल आएगा ही आएगा। समटाइम्स इट कैन टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके थोड़े टाइम के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रेगुलर हो जाती है, यानी कि द पीरियड्स स्टार्ट कमिंग आफ्टर एवरी 28 डेज। अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है तो आफ्टर एवरी 28 डेज एवरी मंथ periods will be there, menses will be there, और अगर 30 डेज का है तो 30 डेज के बाद। सो इनिशियली इट्स इरेगुलर बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स रेगुलर। ठीक है, तो ये तो सारे चेंजेस हो गए हमारे फीमेल में। अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली कंट्रोल कैसे हार्मोन से होती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैचुरेशन ऑफ द एग, पहले एग मैच्योर होगा, इट्स रिलीज, फिर रिलीज होगा, थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, जो अभी हमने पढ़ा कि यूट्राइन वॉल थिक हो जाती है, एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से शेडिंग होगी। अच्छा, अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, देन इट इज गोइंग टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड, वो सेटल हो जाता है यूट्रस की वॉल पे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और यहाँ से हमारा जो बेबी फॉर्मेशन है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन है, वो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब ये कैसे पता चलेगा whether it is going to be a baby boy or a baby girl? ठीक है, so now let us see, let's decode this. Children, let's start that how can we determine whether the baby will be a boy or a girl. So सबसे पहले इसको समझने के लिए we need to understand what are chromosomes. Chromosomes होते क्या हैं? ठीक है, chromosomes they are thread like structures. ठीक है, they are present in the nucleus of every cell. सभी cells के nucleus में present होते हैं, और human beings में 23 pairs of chromosomes होते हैं। अच्छा, 23 में से 22 pairs जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं,
इनका रिप्रोडक्शन में एज सच सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, बट जो 23rd पेयर होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स ऑफ 23rd पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये 2 हो सकते हैं, एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो एक फीमेल में हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एक मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब गैमीट्स क्या हो गए? गैमीट्स एग या स्पर्म को हम गैमीट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एग या स्पर्म या हम कह सकते हैं गैमीट्स, ठीक है, इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये अगर मैं बात करूँ अनफर्टिलाइज्ड यानी कि जो अभी कंबाइन नहीं हुआ है स्पर्म के साथ, एग, इस एग में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। ये बॉयज़ में क्या होता है? एक्स वाई कॉम्बिनेशन होता है, गर्ल्स में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। लेकिन जब हम गैमीट की बात करते हैं, ठीक है, एग की या स्पर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स में हमेशा एक्स रहेगा, लेकिन बॉयज़ में क्या हो सकता है? मेल्स में क्या हो सकता है? एक्स भी हो सकता है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, और वाई भी हो सकता है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। अब अगर गर्ल्स में तो, फीमेल में तो एक्स ही है, एग में तो एक्स ही है। अगर एक्स एग में एक्स वाला स्पर्म एंटर करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, तो बेबी क्या होगा? गर्ल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर एक्स में, एग में एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम, उसको वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो क्या कॉम्बिनेशन बन गया? एक्स वाई। सो ऐसा जो चाइल्ड होगा, ऐसा जो बेबी होगा, वो होगा मेल चाइल्ड, ठीक है। एक बार रीड करके समझ लेते हैं। व्हेन अ स्पर्म containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote will have 2 X chromosomes, जैसे कि आपने यहाँ देखा, ठीक है, and it will develop into a female child. It will develop into a female child. But if the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, now this sperm is contributing a Y chromosome, और egg में तो पहले ही X है, so combination क्या बन गया? XY बन गया। In this case, the zygote would develop into a male child. ठीक है, समझ आ गया? Okay. Now you know that the sex chromosome of the father determines the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of a baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. तो ये एक सोशल टैबू है जिसमें कि फीमेल्स को, घर की लेडीज़ को बोला जाता है कि अगर बेबी बॉय नहीं हुआ तो वो आपकी वजह से नहीं हुआ। नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा, वेदर इट इज़ अ गर्ल और वेदर इट इज़ अ बॉय, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फादर, क्योंकि फादर का क्रोमोसोम, फादर के स्पर्म में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर एक्स है तो गर्ल होगा, अगर वाई है तो बॉय होगा, वही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। Now children, moving on to the next topic, that is hormones other than sex hormones. तो यहाँ तक हमने sex hormones के बारे में we have learned. Let's move on to the next topic. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes. ये हमने पढ़ लिया था, यही repetition है, and ovaries to produce their hormones. Okay, so now pituitary gland कैसा gland है? It is an endocrine gland. और endocrine gland कौन से होते हैं? जिनको हम ductless gland बोलते हैं, यानी कि इसमें duct नहीं होती, और ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं. इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid. You can see thyroid here. Pancreas and adrenals. Thyroid, ये pituitary हो गया हमारा, ये testis हो गया, ये ovary हो गया. Now इसके अलावा 3 glands हमने कौन से पढ़े? Thyroid, pancreas and एड्रिनल ग्लैंड्स. तो थायराइड जो है वो हमारा बताता है थायरॉक्सिन ग्लैंड, ठीक है, और जो हमारा पैनक्रियाज है वो बताता है इंसुलिन
ठीक है, जो हमारा शुगर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, और एड्रिनल ग्लैंड बनाता है हमारा एड्रिनलिन. इसको भी हम आगे विल लर्न अबाउट इट. ओके. So now Bojo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. अब goiter ये एक disease है, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. तो अभी मैंने बात करी आपसे कि जो थायराइड है वो क्या कौन सा हार्मोन बना रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग थायरॉक्सिन ग्लैंड. और ये जो हमारी प्रॉपर थायरॉक्सिन ना बनने की वजह से जो डिजीज़ है वो कौन सी है, ग्वाइटर, जिसमें कि थ्रोट जो है वो फूल जाता है आगे से. ठीक है. अच्छा, their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. Okay, diabetes में क्या होता है, the pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. insulin शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो बेसिकली बॉडी में अच्छे से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ अप नहीं हो पाती है. ओके. अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की. एड्रिनल ग्लैंड्स के कैसे बताएंगे कि एड्रिनल ग्लैंड्स secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. So this is very important from the exam point of view also, all these hormones. और इसका क्या फंक्शन है एड्रिनल ग्लैंड का, कि it secretes hormones that maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed, or worried. So students, can you see that there are two roles which adrenal gland is actually playing? One is that it is maintaining the correct salt balance. एक function ये हो गया. दूसरा function हो गया to produce the hormone adrenaline, which is a stress hormone, that which is help the body to adjust to stress. Okay. So these are the two uses of adrenaline, and this is very important, can be asked in the exams also. So just learn it nicely. Okay, apart from thyroid और adrenals जो कि hormones secrete करते हैं, किसके कहने पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पर, है ना. और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कहेगा, हार्मोन्स रिलीज करके. अच्छा, इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. सो नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. सो काफ़ी सारे हार्मोन्स हमने पढ़ने हैं. आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो? Have they any role to play in reproduction? In our next upcoming topic, we are going to discuss about the same. So stay tuned.